Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 7th July 2020. So the most important development today we have in this newspaper is regarding disengagement at the border region of India and China along LAC. So let us see which are these articles. We have segregated them for mains examination and for prelims examination. You can see the articles related to this de-escalation at the LAC region, and let us see how we can take inputs from these articles one by one. So first article from the front page, PLA pulls back from Galwan clash site. Okay, some information, we can say some developments, follow up, all these things that we have been following since last 1 month now. So let us try to understand what is the background. So if we look at the background, we know that last month there were clashes in Galwan Valley region between Indian and Chinese army, and now after lot of deliberations and talks between these two countries at commander corps levels and now at diplomatic level, now this has resulted into de-escalation in these regions. Okay, so what are the important points that we should understand here is that they have begun the process of disengagement at these locations, and this has commenced after special representatives Ajit Doval and Wang Yi tasked to hammer out the solution to boundary dispute. ठीक है, इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बोला गया है अंडर द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो बाउंड्री डिस्प्यूट का जो है मैकेनिज्म. ठीक है, तो उन्होंने बात की है एक दूसरे से और ये एग्री किया गया है अभी. ठीक है, तो इन गलवान वैली रीजन चाइनीज ट्रूप्स हैव शिफ्टेड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द साइट ऑफ 15 जून वायलेंट क्लैशेस, दैट इज गलवान वैली रीजन. ठीक है, तो हमने बेसिक्स इसके कवर कर चुके हैं. गलवान वैली क्या है, गलवान रिवर क्या है. ठीक है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ फॉलो अप रखेंगे. एट द सेम टाइम वी हैव सीन द लेट्स से रिट्रीट ऑफ दिस PLA आर्मी from Pongyangso Lake region also, where we have found the let's say confrontation between these two armies, and then it was decided at military commanders corps meeting that at first de-escalation would be taken place at 3 friction points, Galwan, Pongyangso and Hot Springs region, and then later on in depth areas like Depsang plains in the north where China has amassed troops. Okay, so these 4 regions you should understand. First 3 are points of conflict at we can say points of friction at present, and then there are some fronts created like Depsang plains. Fine. Now let us try to understand what two countries officially are saying about this de-escalation process. Okay, so what Ministry of External Affairs of India and China, what their statements suggest regarding this de-escalation, de-engagement process. Let us try to understand from this article. Okay, so we have made a table wherein we can understand that there are some minute differences between these statements of Ministry of External Affairs of both countries. And what are these differences? Let us try to understand. Here in India's statement, it is saying that yes, both agreed that they should complete the ongoing disengagement process along LAC expeditiously and ensured a phased and stepwise de-escalation. Both should strictly respect and observe the LAC and should not take any unilateral action to alter status quo. Okay. At the same time, it did not mention the cause of recent tensions. ये देखो, आपको समझेगा इस स्टेटमेंट से कि पिछली बार जो स्टेटमेंट दिया था MEA ने, तो वहाँ पे बोला गया था कि ये टेंशन्स जो है वो चाइना के एग्रेशन की वजह से हुए हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट में कहा गया था. नाउ दैट स्टेटमेंट इज टेकन बैक एंड दिस वी कैन से दैट पॉइंट इज टेकन बैक, एंड नाउ द न्यू स्टेटमेंट डज नॉट मेंशन अबाउट द कॉज ऑफ टेंशन्स. ओके, सो we can say that this is the positive step to let's say have soft stance. The statement did not mention the Galwan Valley also. Okay, जहाँ पे clashes हुए थे वो point mention भी नहीं किया गया है. ठीक है, so that to have let's say a bonhomie
व्हेन वी एक्सचेंज द स्टेटमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हम निगेटिव चीज़ों को एम्फसाइज नहीं करेंगे, रादर हम पॉजिटिव चीज़ों को एम्फसाइज करेंगे. Both sides should take guidance from the consensus of leaders that maintenance of peace and tranquility along the border areas was essential for further development of our bilateral relations. Now let us try to understand China's statement. ठीक है, चाइना ने भी जो है वो LAC को मेंशन नहीं किया है. ठीक है, हमने LAC को मेंशन किया है यहाँ पे, बट स्पेसिफिकली चाइना LAC मेंशन नहीं करता है. इसका मतलब चाइना जो है LAC रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है इनडायरेक्टली. ठीक है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट में वो वर्ड यूज़ नहीं करते, टिल देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट चाइना इज कम्प्लीटली हैविंग क्लेम ओवर दैट अक्साई चीन रीजन एंड बियॉन्ड LAC रीजन. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट ऑल्सो. We hope that India can work with China to guide public opinion in the right direction and keep and advance bilateral exchanges and cooperation. आप देख सकते हैं कि चाइना इनडायरेक्टली आपके जो हम बोल सकते हैं कि इंडिया के लीडर्स को बोल रहा है कि जो लोगों में पब्लिक ओपिनियन जो क्रिएट हुआ है, लाइक बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ज़रूर कहीं ना कहीं उस पर चाइना की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट गिरा है, राइट. सो दैट्स वाई व्हाट दे आर सेइंग इज there should be guiding of public opinion in the right direction and keep and advance bilateral exchanges and cooperation. It is indirectly meaning economical sector or economic sector. Okay, so bilateral trade we can say that, and avoid amplifying differences and complicating matters to jointly uphold the big picture of China and India relations. अब जैसे आंसर में आपने कुछ वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि टू स्ट्रेंथन द कम्युनिकेशन थ्रू मैकेनिज्म्स ऑफ SR मीटिंग्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स, होल्ड मीटिंग्स ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स विदाउट इंटरप्शन, कंसिस्टेंटली इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इनको CBMs जिसको बोला गया है. ठीक है, तो CBMs जो होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल. प्रिवेंट मोर इंसिडेंसेस दैट अंडरमाइन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द बॉर्डर. हम बोल सकते हैं कि दिस इज, ये हमने ये स्टेटमेंट्स इसलिए लिए हुए हैं, इसका रीज़न ये है, ठीक है, कि दोनों के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, और आपने वो आंसर में यूज़ करने चाहिए. You can see the language here, right? You can see the language, and this is language of international relations that should be, let's say, used in your GS2 paper. ठीक है, जो IR के related जो questions होते हैं. Fine, like confidence building measures, and then we can say that peace and tranquility along the border areas. All these things should be mentioned in the answers. Fine. So moving on, there is one article wherein some ओपिनियंस बाय एक्सपर्ट्स आर गिवन. अब ये एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं इस de-escalation प्रोसेस में? दे आर सेइंग दैट वी शुड नॉट गेट स्वेड अवे ओनली थ्रू दिस negotiations, or we can say de-escalation process, and we should take the lesson from Doklam crisis, okay, or Doklam standoff. Now what happened in Doklam standoff? You can see that in 2017 there was standoff between Indian army and Chinese army at Doklam region in, let's say, tri-junction of Bhutan, India and China. Now that standoff led again through diplomatic negotiations. What happened is there was disengagement like this one only. Okay, so after 2.5 months, however, what happened is after that disengagement there was no assertion from India, strong assertion from India, and that's why what happened is in Doklam region and Doklam Plateau region there was a large scale we can say that infrastructure building, okay, by the China in that region. And now it will be very difficult for India if there is any clashes or conflict in that region, because there is a huge infrastructure building along the China's side, however not from the India's side. Okay, so that's why the same thing the experts are advising that we should not get swayed away
rather we should be, let's say, focusing on bringing an agreement with China that there should be what you can say, returning to status quo ante or situation before the standoff began. इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सिर्फ डिसएंगेजमेंट करके खुश नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है. So in Doklam, while disengagement brought end to hostilities between India and China over China's attempt to build a road near the India-Bhutan tri-junction area, so here it did not stop PLA's construction work right across the Doklam plateau. Okay, so today PLA has constructed major infrastructure and consolidated its position in Doklam. Now you should understand this background. ओके ठीक है, आपने ये जब ओपिनियन देते हो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आना चाहिए आंसर में, ठीक है. सो एट द सेम टाइम लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट, गिवन द प्रेसिडेंट चाइनाज लेटेस्ट क्लेम ऑन ईस्टर्न भूटान दैट abuts the Arunachal Pradesh where another tri-junction exists should watched closely as well. कल हमने क्या कहा था कि एक नया डिस्प्यूट हुआ था भूटान और चाइना में. ओके, देयर इज वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्तंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in eastern Bhutan, eastern Bhutan region. Okay, and there is conflict now. The China is claiming the area of this wildlife sanctuary in that region, and again there can be we can say that standoff, a new front can be created by China in this region, and we should be aware about this part or these developments. Okay, so these inputs can be taken from those articles. ये developments ध्यान में रखने हैं और expert opinions ध्यान में रखने हैं. Fine. So what kind of questions? While the disengagement may bring an end to hostilities between India and China, there is need of long-lasting peaceful solution to boundary disputes. Analyze the statement. ठीक है, तो हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये तो एक short term solution है, right, to bring peace and tranquility along the border. However, what we need as a long-term solution is to solve this boundary dispute amicably between these two countries. ठीक है, तो ये था इंडिया चाइना का डेवलपमेंट. नेक्स्ट आर्टिकल इट इज़ टॉकिंग अबाउट नो मोर सत्तनकुलम्स. सो बैकग्राउंड में इसका देता हूँ आपको कि सत्तनकुलम ये जो तमिलनाडु में प्लेस है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक फादर और सन जो है उन पे पुलिस ने लॉकअप में जो भी एक्सेसेस जो बोल सकते हैं हम किए हुए हैं, उनकी वजह से हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी, राइट. सो now we can understand the need of police reforms and the work culture in the police institution, what are the problems faced by that institution, and what is the need of these we can say police reforms in the changing context of Indian society. Okay, so earlier we can say that the focus was on law and order. However, the changing context of our society, as we have, let's say, almost covered more than 70 years of independence now, and that's why what we need is changed attitude, changed behavior from this institution, or we can say colonial institution. Okay, so that's why the article is talking about this one. We can take inputs, very important article. Why? Because it is written by R.K. Raghavan, ex CBI director. ठीक है, तो इनके आर्टिकल्स जो होते हैं जब भी पुलिस से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, या सीबीआई से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो आप ये फॉलो अप रखेंगे. फाइन. सो some important statements like police brutality is universal and internal cover-ups are common. There is informal trade unionism and a code of silence among the police as in the other profession that militates against the objective inquiries into police conducts. तो आप देख सकते हैं जैसे कि सिंघम मूवी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप मूवी में देखिए, बॉलीवुड के भी या कोई भी है,
तो वहाँ पे दिखेगा आपको कि पुलिस में एक तरीके की यूनिटी दिखाई गई रहती है ना। मतलब एक पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए दूसरा पुलिस ऑफिसर जो है उसको झूठ बोलेगा या एक साइलेंस मेंटेन करेगा, या फिर जो जूनियर होता है वो सीनियर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा बिल्कुल भी, अगर सीनियर गलत भी हो तो। ये जो एटीट्यूड होता है, या ठीक है हम बोल सकते हैं कि देर आर सम फाउंडेशनल वैल्यूज लाइक वी नीड टू मेंटेन हायरार्की, डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग्स। हाउएवर इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, दे आर हैविंग वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी एट प्रेजेंट। सो सम बेसिक्स अबाउट दिस case also, like in a report, a judicial magistrate of Koilpatti submitted to the court suggests that police did not cooperate during the inquiry. Also there is evidence that CCTV footage at the police station has been erased. तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ऐसे टाइप का लगता है। ठीक है, मतलब आप एविडेंस जो है कम्प्लीटली इरेज कर देते हो, आप जो है इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सब कोई एक मूवी का प्लॉट लगता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ों को एक स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स रिवील दैट इंजुरीज इन्फ्लिक्टेड एंड द वेपन्स यूज्ड, and this is nothing but the loss of image suffered by Tamil Nadu police. Okay, so some important points regarding police institution and its working at present, like the work pressure and unfair treatment by supervisors. Now we can say that the police force is coercive arm of state, often in direct contact with ordinary citizens. ये तो हम जानते हैं कॉलोनियल पीरियड से ही। ठीक है, कि जैसे स्टेट जो है वो एक कोएर्सिव पावर यूज़ करने के लिए पुलिस को सामने रखता है, और पुलिस के सामने होती है जनता। ठीक है, कॉमन पीपल। सो व्हाट वी कैन सी इज नॉट एक्सेसेस बाय स्टेट, रादर एक्सेसेस बाय पुलिस। ओके, तो उनका एक पिक्चर दिखता है सामने। फाइन। एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग देयरफॉर हैज आउटसाइज्ड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। तो ये आप GS2 में आपको पता है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो है उसमें आपको ये पुलिस इंस्टीट्यूशन के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में बताना पड़ेगा। पुअर ट्रेनिंग एंड एलिनेटिंग डीह्यूमनाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट, करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, these are very basic points regarding police institutions. We know that, and such kind of, we can say, case study can be also asked in your ethics paper. Okay, so how if you are the senior police officer, then how do you proceed on that aspect, all these things. ओके, अब ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नो गारंटी दैट द पुलिस विल एक्ट इन सिविलाइज्ड मैनर। और इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंट में US में जो केस हुआ है, जॉर्ज फ्लॉयड इंसिडेंट। हम बोलते हैं कि US इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड इवन आफ्टर दैट what happened is the anti-racial, we can say racial crimes in that country still going on by the police itself, and that's why we can understand that the situation in India is more worse than that country, we can say that. And the way forward, they are suggesting that yes, we can have this suggestion that every recruit should be subjected to psychology test. However, the author or the writer is saying that its efficacy or relevance is very less, as there may not be always identifying these men with disturbed mind. ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हमेशा ही जो डिस्टर्ब माइंड्स होते हैं या जो निगेटिव माइंड्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर नहीं पाते। ठीक है, सो व्हाट वी कैन हैव इज टेक्नोलॉजी, लाइक बॉडी कैमराज जो US और UK में यूज़ होते हैं। जैसे कि पुलिस ऑफिसर के सर पे जो कैप होता है या जो हेलमेट होता है, तो वहाँ पे सामने कैमरा लगाया हुआ रहता है। सो wherever they go, whatever they talk to the people, that is recorded and that is monitored always on the continuous basis, and that may act as a, let's say, force on for a restraint by this police. Okay, ठीक है, तो ये एक्सेसेस कम होंगे। तो दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अ लॉट डिपेंड्स ऑन लीडरशिप विच हैज सैक्रेड ड्यूटी टू फोस्टर कल्चर ऑफ ओबीडियंस टू द लॉ। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी है कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लीडरशिप जो है वो क्या करते हैं एथिक्स में, सोशल इन्फ्लुएंस होता है उनका, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन जो सिलेबस का टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे आपको ये इनपुट्स पता होने चाहिए।
So leadership or leaders have their role to persuade people, or let's say promote the culture of obedience to the law, and they can have this through lead by example. लीड बाय एग्जाम्पल. हम देखते हैं कि लीडर्स ही बहुत सारे जो है वो लॉ ब्रेक करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, तो वो कैसे कल्चर प्रमोट कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स वाई लीड बाय एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मीडिया हैज इट्स टास्क कट आउट टू आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट अनएथिकल लीडरशिप, so that there is a kind of accountability ensured in these leadership or let's say powerful positions. Fine. So what kind of question we can expect in, let's say, GS2 also, or we can say that ethics also. Here you can see that वो जो हमने statement देखा था democratic government वाला, तो हम बात करेंगे यहाँ पे effective measures that should be undertaken to reduce police excesses. तो पिछले हमने लेक्चर में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है प्रकाश सिंह केस 2006 में ये गाइडलाइंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने. हमने वो थरोली कवर भी की है पिछले कई लेक्चर्स में. तो प्रकाश सिंह केस के गाइडलाइंस पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपने आंसर में लिखना चाहिए GS2 में. Then discuss the causes and manifestations of poor work culture in police institution. According to you, what steps should be taken so as to change this work culture? ठीक है, तो आपको यही पॉइंट्स यूज करने, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, रोल मॉडलिंग और लीड बाय एग्जांपल. ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर इन योर आंसर. फाइन. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वी कैन सी इज yes, ओपियम सीजर्स इंडिया इन द टॉप 5 लिस्ट. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक आर्टिकल जो है, हम इसके थोड़े दिन पहले ही हमने ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था. और वो कौन सा रिपोर्ट है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम. ओके, सो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 ऑफ UNODC. व्हाट आर द हाइलाइट्स? The fourth highest seizure of opium in 2018 was reported India. तो पहला ईरान है, दूसरा अफगानिस्तान है, और तीसरा पाकिस्तान है, और चौथा इंडिया है. ठीक है, क्लोज टू 97% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन हैपन्स इन ओनली 3 कंट्रीज, और सबसे ज़्यादा जो है वो 84% अफगानिस्तान में. सो ओपिएट्स मतलब ओपियम से तैयार होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हीरोइन और जो अफीम और ये सब चीज़ें होती है, दे आर सीज्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ओपियम, देन फॉलोड बाय हीरोइन एंड देन मॉर्फिन. ठीक है, तो हीरोइन क्या होता है ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट्स. ठीक है, तो वो पॉपी प्लांट्स जो होते हैं ओपियम के, ठीक है, तो वहाँ पे उसके सीड के यहाँ से हम वो मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मॉर्फिन जो है मेडिसिनल यूज़ भी है, उसको हम बोल सकते हैं कि पेन किलर बोल के यूज़ होता है. ठीक है, तो सिडेटिव्स टाइप का. ठीक है, तो वो ज़्यादातर अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ होता है. हीरोइन ये जो ड्रग है उसमें यूज़ का. अबाउट UNODC हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, क्विकली हम फिर से देखेंगे. 1997 में एज एन ऑफिस फॉर ड्रग एंड कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन it was established by merging these two organizations. Then its headquarter is located in Vienna. It was renamed as UNODC in 2002. Okay, so UNODC incorporates secretariat of INCB, International Narcotics Control Bureau. World Drug Report is the yearly publication. तो आपको prelims में पता है कि publications पूछे जाते हैं. So World Drug Report is the publication of UNODC, yearly publication. 26 जून जो है हर साल इसको हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो 26 जून अभी रिसेंटली हुआ था, तो 27 जून को हमारे यहाँ पे न्यूज़ था द हिंदू में, तो तभी हमने ये बॉडी को और डिटेल में कवर किया था. ठीक है, और 3 ड्रग रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के जो ट्रीटीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. उनके कैंपेन्स है लाइक नो ड्रग कंट्रोल कैंपेन. यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि हमें लगता है कि वो सिर्फ ड्रग से रिलेटेड है, बट वो क्राइम से रिलेटेड भी है. तो क्राइम में क्या क्या आता है, लाइक एंटी करप्शन,
और लेट्स से वो एड्स कैंपेन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला भी क्राइम आता है, तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड, ठीक है। तो ब्लू हार्ट कैंपेन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बाय यूएनओडीसी। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूएनओडीसी, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दिस इज, यू कैन सी दैट इट इज रिटन बायनली, रादर इट वाज एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न एंड 239 एक्सपर्ट्स वॉर्न इन लेटर टू WHO, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूज़ हमारे लिए, जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दीज एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट दे हैव फाउंड एविडेंस शोइंग दैट स्मॉलर पार्टिकल्स कैन इन्फेक्ट पीपल एंड आर कॉलिंग फॉर एजेंसी टू रिवाइज इट्स रिकमेंडेशन। ये बोल रहे हैं कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स में वो सस्पेंड होके ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है, हो रहा है, और इसलिए WHO ने इनके रिकमेंडेशंस जो है वो चेंज करने चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई, बिकॉज इफ एयरबॉर्न ट्रांसमिटेशन इज सिग्निफिकेंट स्पेशली इन क्राउडेड स्पेस विथ पुअर वेंटिलेशन, द कंसिक्वेंसेस फॉर कंटेनमेंट विल बी सिग्निफिकेंट। वाई, जब आप घर में हो और सारा एयर जो है वो बंद है, ठीक है, आपको क्या है, कंटेनमेंट जोन में रखा है, ठीक है, तो उसके बाद भी जो बाकी लोग जो है उनको भी ये स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि एयर जो है उसमें ये वायरस हो सकता है। दैट्स वाई मास्क नीडेड इंडोर ऑल्सो। हेल्थ वर्कर्स विल नीड N95 मास्क। वेंटिलेशन सिस्टम्स इन schools, nursing home, business complexes may need to minimize the recirculating air and powerful new filters, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगेंगी हमने ये वायरल पार्टिकल्स को किल करने के लिए जो एयर में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट स्टैंड WHO का, दैट कोरोना वायरस इज स्प्रेड प्राइमरीली बाय लार्ज respiratory droplets that once expelled by infected people in cups and sneezes fall quickly on the floor or surface of the subject, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि कहीं पे भी हाथ लगाने से हम सोचना चाहिए, अब हाथ लगाने के बाद हमने इमीडिएटली हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, तो इन रिकमेंडेशंस की वजह से है, ठीक है। However, now the experts are saying that ये एयर में भी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, एयर में पार्टिकल्स के साथ वो स्प्रेड होता है, एंड व्हेन वी इनहेल दोज पार्टिकल्स एंड देन देयर कैन बी इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस, ओके। सो दैट्स व्हाई दे आर सजेस्टिंग दैट WHO शुड चेंज इट्स रिकमेंडेशन ऑन दिस एस्पेक्ट, फाइन। सो ये इस पे डेवलपमेंट्स आगे आएंगे अभी, ठीक है। तो आपको ये एक कंसेप्ट याद रखना है इसके आगे डेवलपमेंट्स में। Now, in terms of art and culture, the new art form, or we can say the article mentions that Zardosi art. Now, this Zardosi art जो यहाँ पे बोल रहे हैं भोपाल में जो artists है, they are facing hardships because of lockdown and subsequent loss of demand in this particular embroidery for art form. Okay. So क्या क्या हम background देख सकते हैं हमारे exam के लिए, like this art form patronized by Mughals that involves weaving metallic threads on fabric to create intricate patterns, okay। तो metallic threads जो है वो fabric, generally silk fabric यूज़ किया जाता है, उस पर metallic, तो metallic मतलब traditionally gold या silver यूज़ किया जाता था, अभी हम बोल सकते हैं कि उसको combination करके जो today's craftsmen they are using copper also, copper wire along with gold and silver, okay। So Zardosi is actually an important handicraft of Persian culture, वहाँ से हमने adopt किया है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि मुगल्स जो पर्शियन ओरिजिन जिनका है, तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने उनको पैटर्नाइज किया गया है। Zardosi comes from two Persian words, zar means gold and dozi means sewing, ठीक है। So today in India, Zardosi is popular in important cities of UP like Lucknow and then Farrukhabad, then Chennai and Bhopal, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं चेन्नई में भी स्प्रेड है साउथ इंडिया में। Now we should understand that a geographical indication to was given to the Lucknow Zardosi, not other,
ओके, ओनली लखनऊ जारदोसी 2013 में उनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलता है तो उनको एक यूनिकनेस मिलता है, हम बोल सकते हैं ट्रेड के लिए, और उनका रिकग्निशन जो होता है मार्केट में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट for development. What are the threats here is that the mounting losses and joblessness due to decline demand in lockdown, lack of supply of cheap raw material from China, and the developments of automation and technology in terms of embroidery, or we can say overall textile sector. Fine. So आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको देख सकते हैं। तो ये ग्रीक कल्चर का पार्ट नहीं है, रादर क्या है, पर्शियन। ठीक है, नाम से भी आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, पर्शियन हो सकता है। ठीक है, तो बाकी तो सेम है, जीआई टैग मिला है लखनऊ। सो इम्पोर्टेंट कैप्शंस एंड कोटेशंस, एक ही इम्पॉर्टेंट कैप्शन जो हम बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट गारंटी, और उसके बाद हम दूसरा जो बोल सकते हैं पुलिस फोर्स से रिलेटेड, वर्क कल्चर के रिलेटेड। ओके, पुलिस फोर्स इज अ कोएर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट ऑफन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑर्डिनरी सिटीजन। सो क्वालिटी ऑफ पोलिसिंग हैज़ इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ पोलिसिंग हैज़ बियरिंग ऑन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अच्छा हो तो अपने आप क्वालिटी ऑफ पोलिसिंग भी अच्छा होगा। ठीक है, थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप ऑल्सो वी कैन से दैट। तो एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट टूडेज द हिंदू न्यूज़पेपर. So for further information regarding our ED classes, editorial discussion classes, wherein the in-depth analysis of these mains related articles and are done by Ansari sir and the team, you can contact Lukman IAS. Thank you.